Hello kids, how are you all? I am Shelly Sharma, your teacher and your best friend. Do you know that I am going to tell you which story today? So kids, the name of today's story is The Boy Who Cried Wolf. Children, do you know that this story is based on an idiom called cry wolf, which means to keep asking for help even when you don't need it. And when you really need help, no one believes you. So, this is the story of a boy who cried the wolf. Once there lived a shepherd boy named Chintu in a village who was very naughty. He often used to play pranks on people. He daily used to take all his sheep up on the mountain to have some grass. But one day, when he was sitting alone there and felt very bored, so he thought of playing a trick on villagers for his own fun. So he started shouting, wolf came, please help. Wolf came, please help me. Listening to this, all the farmers who were working under the hill came up, running to help the boy. But when they reached there, they saw that there was no wolf at all. They became very angry on the boy. But the boy was laughing on them. By seeing this, all the farmers were very angry and they scolded the boy that if next time you will play such prank, we would not come to help you again. But the next day, the boy played the same prank again. He started shouting, wolf came, please help me, wolf came. And the farmers ran away again to help the boy. But they saw that there was no wolf again. And the boy was laughing at them again. Now everyone was very angry with the boy. And all of them left in anger and said that we will never come for your help. But after few days, when the shepherd boy was sitting with his sheep on the hill, suddenly a real big wolf came there. The wolf started attacking on all his sheep. The boy got very scared. He climbed up the tree to save his life. And then he shouted for help. Wolf came, please help me. Wolf came, please help me. But this time, all the farmers did not trust him and did not come to help the boy. The wolf attacked all the sheep and killed a few. तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है भेड़िया आया। बच्चों, क्या आप जानते हो कि ये हिंदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ होता है कि जब हम बार बार झूठ बोलते हैं तो सच बोलने पर भी कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करता। तो आज की कहानी है एक भेड़ चराने वाले लड़के की जिसका नाम था चिंटू, जो बहुत ही शरारती था और वो अपनी शरारतों से सबको परेशान करता रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को घास चराने के लिए पहाड़ पर ले जाता था। एक दिन जब वह पहाड़ी पर अकेला बैठा बोर हो रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई शरारत की जाए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, कोई मेरी मदद करो, भेड़िया आया, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले लोग जो कि पहाड़ी के नीचे खेतों में अपना अपना काम कर रहे थे उसके पास जा पहुंचे। परंतु जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पर तो भेड़िया था ही नहीं। तो वे लोग बहुत नाराज हुए, परंतु वह लड़का चिंटू तो उनके ऊपर हंस रहा था। यह देखकर तो सभी गांव वालों ने उसे बहुत डांटा और कहा कि अगर तुम ऐसा दोबारा करोगे तो हम तुम्हारी मदद के लिए कभी नहीं आएंगे। लेकिन उस लड़के चिंटू को तो ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। उसने अगले दिन फिर वही शरारत की
भेड़िया आया, कोई मेरी मदद करो। यह सुनकर गांव वाले बेचारे फिर से अपना सारा काम छोड़कर चिंटू के पास गए तो देखा कि वहां पर कोई भेड़िया नहीं था और वह फिर से हंस रहा था। अब तो सारे लोग बहुत ही गुस्सा हुए और गुस्से में आकर वहां से चले गए और कहा कि अब हम कभी भी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ नहीं आएंगे। परंतु जानते हो बच्चों, फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद जब वह पहाड़ी पर अपने भेड़ों को घास खिलाने ले गया था, तभी अचानक वहां एक बड़ा सा भेड़िया आ गया और तब चिंटू बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया और वह फिर मदद के लिए चिल्लाया, भेड़िया आया, कोई मेरी मदद करो। भेड़िया आया, कोई प्लीज मेरी मदद करो। परंतु इस बार किसानों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और वे उसकी मदद के लिए नहीं आए और तब तक भेड़िए ने उसकी बहुत सारी भेड़ों को मार डाला। यह सब देखकर चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है। अगर हम बार बार झूठ बोलते हैं तो जब हम सच बोलते हैं तब भी लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करते। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि झूठे लोग अगर सच भी बोलें तो कोई उन पर विश्वास नहीं करता, जैसा कि इस लड़के चिंटू के साथ हुआ। उसने कई बार लोगों को भेड़िया आया कहकर मूर्ख बनाया, परंतु जब सचमुच में भेड़िया आया तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।